अगर कोई सेलिब्रिटी को मुझे अपने वेडिंग पे बुलाना है तो हाउ मच वुड ही चार्ज? Any television background artist, anybody who's sung in Bollywood even one song directly jumps to a category of and above. And if they are IFA winners, if they are Filmfare winners, then the bracket goes to above. I have done a Sangeet where Vishal Shekhar ji had performed, Raghav Sachar has performed, Sukhbir has performed, Shankar Ehsaan Loy has performed, Yoyoni Singh has performed, Aditi Singh Sharma has performed, Sachin Parampara has performed, Sachin Jigar has performed. They come, they perform, they leave, over and out. I have happily worked with Vivek Oberoi sir. Vivek Oberoi sir की family में मैंने 4 weddings की. We are still in touch and it's now almost 20 years to our connection that we are in. What are some cheap or some grandeur places where I can do a destination weddings? A resort is always more personalized. 5-star वाली सर्विस आप curate कर सकते हो through event planners, through a good caterer. घर से 2 घंटा ड्राइव किया ना तो destination wedding हो गया. ये लोगों का mindset है. Destination is anywhere out of your house. There is a staycation wedding. जो बॉम्बे के families हैं वो बॉम्बे में ही 2 दिन होटल लेके करते हैं ताज में. So वो staycation wedding हो गया. Jaipur is not for middle class or a higher middle class. It is clearly for people who want to put up a bomb out there. Because Jaipur, Jodhpur, Udaipur, the entire section of Rajasthan is treated mentally or for some is royal. Kunal Butch as a wedding barat anchor we started this. हमने ये 2016 या 17 में स्टार्ट किया था. आज वो एक बड़ा इवेंट हो गया. बारात ऑन व्हील्स है. 2018 में हमने वो डाला तो वो ट्रेंड फेमस हुआ एंड आज इट्स अ बिग थिंग. सो पीपल हायर मी ओनली फॉर बारात एंकरिंग. तो कसिनो नाइट हुआ करती थी. अब कसिनो को डे में लाने के लिए इसको कार्निवल कर दिया. कॉकटेल पार्टी था. संगीत गोइंग इनटू कॉकटेल ओनली यंगस्टर्स. इट वाज अ ट्विनिंग pajama Maggie party. Started at 11, we ended at 4. No way. What's the one biggest wedding trend that you see in 2026? Unique invitations, couple का personalized AI या caricature invite. This is going to be the next trend. ये इंडस्ट्री में चीटिंग होती है? पूरा गेम ही इमोशन का है. And it is easy to do cheating where emotions are easily played with. What's the number one budget mistake couples make in Indian weddings? Most luxurious wedding you have ever been to? मैं अपनी wedding कैसे कर सकता हूँ? You know, very entertaining, but you know, at a lower cost. What are some hacks? So I will give you a superb hack जो हमारे client ने किया था और बहुत superb था. How much do you think these people charge? Let's say कि अगर कोई celebrity को मुझे अपने wedding पे बुलाना है तो how much would he charge? So it depends on celebrity to celebrity. Give me some examples. So so again, celebrity to visit or celebrity to perform? Give me both. Perfect. So performance wise, any Bollywood celebrity will start with 10 lakh plus. Singers की बात कर रहा हूँ मैं. For Performers. So you mean जो recognized singers है वो या मतलब beginner level singers? नहीं, beginner level मतलब television level हो गया. वो 6-7 लाख. अब कोई भी आर्टिस्ट अगर टेलीविजन में आ गया मतलब वो उसका फेस रिकग्नाइज हो गया. लास्ट 7-8 साल में इंस्टाग्राम इतनी बड़ी चीज हो गई है कि एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर भी अगर आप आके कुछ करता है आपके शॉप पे इनोग्रेट करता है, शॉप की बात कर रहा हूँ या स्टोर की बात कर रहा हूँ, तो वही 1.5-2 लाख रुपए ले रहा है. तो एनी टेलीविजन बैकग्राउंड आर्टिस्ट 5 to 10 lakhs. Anybody who's sung in Bollywood even one song directly jumps to a category of 10 lakh and above. Wow. And if they are IFA winners, if they are Filmfare winners, then the bracket goes to 20 lakh and above. If they are a veteran or a senior performer or a singer or whatever, then that goes to 30 lakhs, 40 lakhs. So to name a few, I don't want to reveal the budget part of it, but I have done a Sangeet where Vishal Shekhar ji had performed, Bollywood. Wow. I've done a Sangeet where, what do you call, Raghav Sachar has performed. I've done a Sangeet where, Sukhbir has performed. Shankar Ehsaan Loy has performed. I think there are 50 plus. Yoyoni Singh is performed. Wow. मतलब मैं अभी नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ. उतने नाम है कि सबके. अदिति सिंह शर्मा has performed. Wow. ये सारे who's who है मतलब इंडस्ट्री के. सचिन परम्परा has performed. सचिन जिगर गया था, हमने बैक टू बैक 3 shows किए. तो सचिन जिगर. So they come, they perform, they leave over and out. एक उनका प्राइस है, उनका एक ट्रैवल आइटनरी है. तो वेडिंग में बॉलीवुड सेगमेंट इज अनदर टॉप नॉच काइंड ऑफ स्टार मार्क. So people will say, okay, we don't want to do 4 days wedding. Let's do a 2 days wedding. Call a celebrity. So this is the answer to your one part that they come as a performer. अब
एक इवेंट हमने किया था, इट वाज फॉर वन ऑफ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, महेश बजाज जी हैं, अकोला से हैं, तो उनके यहाँ बर्थडे भी वेडिंग लेवल की होती है। Wow. तो उनके बर्थडे में रिमी सेन आई थी एज एन एक्ट्रेस, एंड शी केम एज अ गेस्ट टू जस्ट कम विश बी ऑन द स्टेज, बट शी परफॉर्म फॉर 25 मिनट्स। Wow. सो एक विजिटिंग आर्टिस्ट भी या एक जस्ट अपीयरेंस आर्टिस्ट भी परफॉर्म करके ही जाता है, या कुछ एक उनके कॉन्ट्रैक्ट में है या बात की है, तो दे कम एंड गिव यू दैट हाफ एन आवर ऑफ अ टाइम। तो like if this huge celebrities come तो क्या वो every time they charge you और रिलेशन के बेसिस पे भी आते हैं? सर वो गया ज़माना रिलेशन के बेसिस No पे। one. सर अगर मैं अंबानी हूँ तो मेरे रिलेशन पे लोग आएंगे। एनीबडी बिलो दैट लेवल ऑफ अंबानी और दोज लेवल ऑफ पीपल, अ सेलिब्रिटी वुड नॉट कम एज अ सेलिब्रिटी, दे विल कम एज अ फ्रेंड। अंबानी के वेडिंग में तो सेलिब्रिटी गेस्ट थे। सर उनको गिफ्ट भी तो मिली। So Yeah, there yeah, can of be course. gift in kind. See, understand? There can be a barter, which is we don't know. हाँ. There can be a gift in kind. Yeah. For example, Yes. there is. So, for example, if I'm a brand owner of this cup, and I want to call Hrithik Roshan sir, and he will, come sip in this cup, and he will leave. That becomes my brand endorsement, Correct. and it's done. It's like a barter. Hmm. Like that's how it works, probably. Hmm. But Hmm. otherwise, I don't see any room of anybody coming just as a friend and performing and going, no, sorry, that doesn't happen. When you work with these celebrities, कोई common pattern observe किया है आपने? Like that they do they throw tantrums at the Oh, host? lovely question. So giving you my one of the best experience, I have happily worked with Vivek Oberoi sir. Hmm. And 2008, I was chosen by their family to do the choreography and the part of it. So when I saw him, I was really happy, shocked, excited, and confused. कि यार मैं तो विवेक ओबेरॉय के घर में बैठा हूँ, उधर आंटी दिख रही है, शी आंटी दिख रही है, सुरेश ओबेरॉय सर दिख रहे हैं, और सब अक्षय ओबेरॉय वन ऑफ द बॉलीवुड आर्टिस्ट नाउ, ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट। सो समझ में तो आ गया 16-17 जन बैठे, और मैं आई एम जस्ट 24-25 एंड आई एम लाइक ओके, आई एम सपोज टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज पीपल। वाओ, अच्छा भी लग रहा है। तो मुझे लगा शायद मुझे टेंट्रम हैंडल करने पड़ेंगे, बट दे वर सो वार्म। Hmm. टेक्निकली उनके लिए मैं एक जस्ट सम कोरियोग्राफर हो सकता था, पर उन्होंने मुझे वही रिस्पेक्ट दिया जो शायद, एंड रादर उन पूरे ग्रुप ने मुझे टर्म दिया मास्टर जी। मास्टर जी ने कोरियोग्राफी बोला ना तो करना पड़ेगा, मास्टर जी। तो वो लोग मुझे छेड़ते थे, मस्ती मजाक करते थे, खाना पीना, लाइक जस्ट दे आर फैमिली। Hmm. एंड नॉट जस्ट दैट, सो मुझे लगा वाओ, दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड। बट आई एम सो ब्लेस्ड दैट विवेक ओबेरॉय सर की फैमिली में मैंने 4 वेडिंग्स की, उनके कजन्स की, Wow. and it was on and on. And even today, and उनके एक brother हैं आनंद ओबेरॉय, he handles a very big ad agency. We are still in touch, and it's now almost 20 years to our connection that we are in. So there are no tantrums if you have those glasses of how to look at stars, and you have that. हाँ, शो पे आर्टिस्ट टैंट्रम नहीं करते, उनके मैनेजर्स को शायद एक फेक विंडो रखना पड़ता है टैंट्रम का, या एक Barrier. बैरियर रखना पड़ता है। रीजन बीइंग, people just get onto the stage, there are no bouncers, or if there are bouncers, they don't want any kind of mishap, because there are parties with alcohol. What if the girl falls on somebody or a guy falls on somebody? So they keep that protocol of not getting bothered. They come, they perform in their time limit of 2 hours or 90 minutes or a little bit here and there, and they show khatam, boom, out. They don't wait. Hmm. They like whoop, move out. So tantrum मुझे अगर कभी मिला भी है, without naming anybody, it's the managers and it's their job to show those tantrums. Artists, they come, they perform, and they live on this fame value. Hmm. They don't want to damage the fan following that they have created. Hmm. So I don't see any tantrums in celebrities. So the reason I'm asking this is because a family member's wedding in mine were happening before. I'm talking about here during COVID. Okay. So during COVID, we were in touch with a wedding planner, or let's say artist manager. और हम संगीत के लिए कुछ ढूंढ रहे थे for a family member, and we got a name. I will not name them, but he very subtly said us that there will be some unofficial band things required Okay. for the intoxication before he or she performs. Oh. So I've got this personal experience from the artist managers and all of that. So the reason that's the core reason that I'm asking this, that do these things happen in the green room behind the stage? Not with us totally, but I won't call it tantrums. I will call it
I just put that up in a, better word. Sir, a new normal. So I'll tell you what. So maybe for you something's a tantrum. Maybe for me it is their necessity. Example. So there is a star who lives in Bombay. The event is in Marriott, Juhu. But still the star demands a room in a 5-star. Now that's a new normal for a star. The star cannot be in the lobby or can't just come and start performing for you. So star needs a room. That's correct. That's totally Because fine. a star is a star. And I'm talking about a Bollywood playback artist. And they need a open hand on ordering anything for them or their team. So the whole set of 10, 12 team members, 5 rooms blocked, 1 suite room blocked, alcohol okay. Because some artists, they want to have an alcohol and come and perform. Now I'll share another episode. This is, I'm talking about a Bollywood artist. Now I'm talking about another artist who's good, renowned, and they charge 6-7 lakh rupees. So artist called for an alcohol, and guess what the guest did? Guest said, tell him to go away from the room. I'll pay him full money. I don't want him to perform. Seriously? Yeah. And that's a Bollywood level artist. Television, yeah. Like television fame, 7 lakh rupees artist. And because he demanded an alcohol, and client said, ठीक है आप करिए जो करना है." Was that in Gujarat? No, it was a Bombay client destination wedding. But yeah, they're like, we are anyway spending a bomb amount. We don't want to handle this tandem. Ki you will have alcohol, then only you'll come and perform. So bullshit. Go back. They respected his choice, and they did not have him perform. So they still paid him and told them? Yeah, because that's a protocol. You pay before the show. But the client was sure he didn't want an artist to have an alcohol and come and perform. Let's move towards the destination weddings. आपने destination wedding का भी बताया, तो मुझे बताइए कि what are some cheap और साथ में some grandeur places where I can do a destination wedding? India or abroad? Or both? Tell me both. First India. India, okay. So India mein, I don't want to call it cheap, but it's always easy to cut your cost on the travel part. So wherever you're staying, वहाँ से जो भी 2 घंटा closest destination है. So because I'm a Bombay based guy and a lot of aspiring artists or families across India, they want anything and everything through and around Bombay, probably artists. तो वो choose करते हैं कि vendor Bombay का है या Bombay, Delhi, so on and so forth. So in India, Goa is one hot property that people do. कितना खर्चा होता है? सर वो तो honestly Minimum. सर 1 CR से ऊपर ही जो भी है. डेस्टिनेशन वेडिंग कोई भी कर लो, 1 हाँ, CR 1 CR तो मिनिमम मैं है. मतलब 1 CR तो कुछ भी नहीं है टेक्निकली तो. ओके. 2 दिन की वेडिंग के लिए, पर अगर उसमें a lot of tweaking factors are going to be what property, where, 5 star, 4 star, 3 star. तो मतलब बजट सेव करना है तो क्या ट्विक कर सकता हूँ वहाँ? सर रिसोर्ट ले लो. ओके. रिसोर्ट इज ऑलवेज मोर पर्सनलाइज और 5 स्टार वाली सर्विस आप क्यूरेट कर सकते हो थ्रू इवेंट प्लानर्स, थ्रू अ गुड केटरर. जो मैंने गुजरात में बहुत देखा है, लाइक देयर इज दिस वेरी गुड प्रॉपर्टी इन वापी दैट इज कॉल्ड अवध उथोपिया. It's a resort, it's a club, but it's a 5-star club. Obviously they charge as premium as 1 CR, but it is giving you 5-star service, but probably just a little lesser than a 5-star. And I don't see any 5-star in Vapi, I mean Gujarat sector. Yeah, if you see Surat, there is this Vedic resort. So it's a resort. So we had been to Orissa. So there was another resort. So it was a 5-star resort. So people who are in Bhubaneswar, they will do somewhere close to their property. So the guests who are traveling to them for destination wedding, आपको उनका खर्चा नहीं भरना, वो अपनी गाड़ी में खुद आएंगे. क्योंकि अगर मैंने आपको बोला मेरा वेडिंग दिल्ली में है या मेरा वेडिंग कहीं ऐसी जगह पे जहाँ ओनली ऑप्शन इज अ फ्लाइट और टू बुक अ बल्क टिकट फॉर अ ट्रेन, देन देयर इज गोना बी अ चैलेंज फॉर यू टू डू गेस्ट मैनेजमेंट फॉर देम. कैसे आएंगे, कब आएंगे, RSVP, अ लॉट ऑफ थिंग्स. RSVP फिर भी होगा, बट अगर नियर बाय डेस्टिनेशन है तो ज़्यादा ईजी हो जाता है. सो इन इंडिया दीज आर सम रियली हॉट कीज. लोनावाला ऑब्वियसली महाराष्ट्र में है, तो नासिक एक हॉट प्रॉपर्टी बन गई है. A lot of good 5 stars are coming, and a good 5 stars are taking good steps of building a 5 star in outskirts. So it feels like a destination. करेक्ट. 2 घंटा ड्राइव करके गए. अगर आप बॉम्बे से इस तरफ आ रहे हो तो हाईवे पे फोन का एक बहुत अच्छा सा होटल खुला है. So people take that also. घर से 2 घंटा ड्राइव किया ना तो डेस्टिनेशन वेडिंग हो गया. ये लोगों का माइंडसेट है. डेस्टिनेशन इज एनीवेयर आउट ऑफ योर हाउस. देयर इज अ स्टेकेशन वेडिंग. जो बॉम्बे के फैमिलीज हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो बॉम्बे में ही 2 दिन होटल लेके करते हैं ताज में. सो वो स्टेकेशन वेडिंग हो गया. इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन वेडिंग, बट इट्स स्टिल 2 days वेडिंग इन ताज.
So that way. So there are these some really great properties that I have worked in. बट आई गेस स्टेकेशन वेडिंग्स बहुत सारी जगह पे अभी नाउ इट्स अ बिट कॉमन आई थिंक जो अपर मिडिल क्लास फैमिलीज है Correct. बिकॉज So- इवन इफ इट्स इन द सिटी लेट्स से कि स्मॉलर सिटीज टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी लोग क्या करते हैं कि दे विल हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल 500 में से 100-150 लोग हैं वो होटल में रहेंगे Correct. सो इट्स अ सेमी स्टेकेशन वेडिंग काइंड ऑफ थिंग करेक्ट ओके सो अपार्ट फ्रॉम गोवा ऐसी और कौन सी जगह है वेयर आई कैन यू नो हाउ इज टेल मी अबाउट उदयपुर जयपुर एंड ऑल दिस So प्लेसेस Jaipur is not for middle class or a higher middle class. It is clearly for people who want to put up a bomb out there. ओके Because any royal, so Jaipur, Jodhpur, Udaipur, वहाँ पे कितना- Bikaner, I mean, in the entire section of Rajasthan is treated mentally or for some is royal. तो वहाँ का कोई भी प्रॉपर्टी ऐसा आपको हल्के भाव में मिलेगा ही नहीं. तो वहाँ अगर आप वेडिंग करो तो एनी तो प्रीमियम सेगमेंट में चला गया अपने आप में. कितना होगा अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको बताया ना पर रूम रेट एंड अ गुड 5 स्टार इज 40,000 इन द सीजन. दैट्स फॉर द कपल राइट No, so per room per Okay, so I was understanding that's for the wedding couple. no, so For every guest. per room Wow. per couple the cost is 40,000 and above 43 44. 3 दिन की वेडिंग है Crazy. तो 1,20,000 प्लस टैक्सेस into 100 rooms, 200 rooms, 300 rooms, whatever. Wow. So we are not looking less than 3 to So 5 I'll tell you about crores. Lonavala, Della. If you heard of Della Adventures in Lonavala, Hmm. super premium property. So Della is a 5-star in Lonavala. There, एक ज़माना था जब फरियाज को लोग 5 स्टार कहते थे, वो अभी भी टर्म 5 स्टार है, लेकिन अगर आप डेला एडवेंचर्स जाएंगे लोनावाला में, Hmm. it's one of its kind in the whole India. Whole India, I'm saying. Super property. And the best part is, they can cater, this is my observation judgment, this is not a research. They can cater 3 different weddings or maybe 2 to 3 weddings at the same time. Because they have 13 within the properties like lawn hai, 13 properties. big lawn, small lawn, big banquet, small banquet, this banquet, that banquet, lawn banquet, between the villa lawn. So और वहाँ हेलीपैड भी है, तो अगर आपको हेलीकॉप्टर से एंट्री करनी है तो वो भी है. तो कहने का मतलब है आप डेला में घुस गए तो अपने आप में एक दुनिया है. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. ये हम कौन से बजट में बात कर रहे हैं for this one? नहीं सब इट्स अ 5-star प्रॉपर्टी. Yeah, but still 10 crores, more than 10 crores. Around and within 5 पकड़ लो आप. Wow. But again, you see, the moment you speak about budget, 2 questions क्या है मालूम, कितने गेस्ट हैं, कितना दिन We'll talk करना है. about 500 people. So 500 Whatever तो- we discuss, we'll discuss about 500. So See, 500 India- is a very big number. Just to tell you, I mean, post lockdown, people have cut down on this number to 250 or 300. लेट्स डू वन थिंग. मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें क्या था कि एवरेज इंडियन फैमिली इनवाइट बिटवीन 300 to 320 पीपल इन देयर वेडिंग, Correct. which is 150 in US and which is 90 in UK. This is the average number. ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. So let's take this 300 as a reference. जो भी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, जो भी वेडिंग्स की बात करें, let's keep a number 300 और उसके हिसाब से we'll discuss budget. So it's easier for the audience to understand. Sir, multiply by 20,000 or 20,000 plus. आप पकड़ के. अच्छा, उसमें भी रूम कैटेगरीज होती है. विला रूम्स चाहिए 30,000 या स्वीट रूम. वहाँ पे तो एक रूम है वो तो 1.5 लाख रुपए का रूम है पर नाइट. 1.5 लाख का विला है. तो आपको आपके पास पहली बात कितना एम्बिशन है टू स्पेंड और कितना पैसा है टू रीच दैट एम्बिशन ऑफ मेकिंग इट अ लैविश वेडिंग. क्योंकि एक एग्जांपल देता हूँ कि ये खूबसूरत आपका स्टूडियो है. ये स्टूडियो सिर्फ एक वाइट वॉल वॉश होता तो क्या अच्छा लगता. करेक्ट. नहीं अच्छा. नहीं तो अच्छा आपने उसको खूबसूरत बनाने के लिए 2 पर्दे लगा दिए, बहुत खूबसूरत लाइट कर दी. इसको और खूबसूरत बनाने के लिए आपने एक टॉप लाइट दे दी. इसको और खूबसूरत बनाने के लिए आपने एक टेबल दे दी. सो विच मीन्स यू फील यू बॉट अ बेस्ट प्रॉपर्टी और ये आपका खर्चा खत्म हो गया. नहीं, वहां से खर्चा शुरू हुआ है, क्योंकि खूबसूरत को और खूबसूरत लगाना पड़ेगा ना सर. इट्स लाइक अ वेरी गुड टेस्टी फूड सर्व्ड इन अ पेपर प्लेट. विल यू ईट? करेक्ट. और चांदी के या सोने की थाली में अगर मैं खाना परोस रहा हूँ और मैं सेंटर में से वड़ा पाव रख के दूं, क्या आप खाओगे? आप बोलो ये क्या है भाई? तो इससे तो अच्छा हाथ में दे देते टिश्यू पेपर. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ कंप्लीट ब्लेंड. यू कैन नॉट लाइक पॉपकॉर्न बोलूंगा तो आपको थिएटर याद आएगा, ब्रेड बोलूंगा तो बटर याद आएगा, चाय बोलूंगा तो कॉफी याद आएगा. तो वैसे ये जोड़ी है कि डेस्टिनेशन वेडिंग अगर मैं कहता हूँ तो उसके साथ ये अटैच्ड लैविश एक्सपेंस आ ही जाएगा आपका. मैं अपनी वेडिंग कैसे कर सकता हूँ, वेरी एंटरटेनिंग बट एट अ लोअर कॉस्ट? व्हाट आर सम हैक्स? सो आई विल गिव यू अ सुपर्ब हैक जो हमारे क्लाइंट ने किया था और बहुत सुपर्ब था. उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुणाल भाई मुझे एक चीज़ पता है,
वेडिंग में 4 फंक्शन होते हैं और हम 3 से 4 एज ग्रुप्स को बुलाते हैं. एक एज ग्रुप जो हमारा फ्रेंड्स है, हाँ. हमारे कजिन्स है. मतलब अगर 25 साल का कपल है तो उसके दोस्त कजिन्स 5 साल ऊपर नीचे होंगे, 22-23 साल के होंगे या विद इन 30 होंगे. इफ द कपल इज 25 years old, right? The second segment is their parents and their entire catalog of people. I mean, their relatives, uncle, auntie, mama, masi, 40 to 60. तो वो 50. 50. तो एक सिंपल कैलकुलेशन है कि अगर माँ बाप 50 के हैं तो बच्चा पहले के लाइक 90s के अराउंड वाले जितने भी हैं, उनके 25 के होंगे. तो मे बी सो दे आर सर्कल. एंड देन अ सीनियर सिटीजन कैटेगरी एंड अ सोशल ऑब्लिगेशन कैटेगरी के पड़ोसी है, बिजनेस एसोसिएट्स हैं, बुलाना ही पड़ेगा. ये अंकल के अंकल है, उनको बुलाना ही पड़ेगा. ये बहन के वेवाई है, उनको बुलाने. तो ये वो कैटेगरी हो गई जो सोशल ऑब्लिगेशन एंड सीनियर सिटीजन है. तो ये पूरे कैटेगरी को उन्होंने 2 दिन या 3 दिन में ऐसे डिवाइड किया था. ओनली बैचलर्स 100 यंगस्टर्स. अब मैं शादी में अगर 100 यंगस्टर्स बुलाऊंगा तो मेरा काउंट बहुत बढ़ जाता है. Wow. पर बैचलर्स में उन्होंने किसी और को बुलाया ही नहीं, क्योंकि उधर अंकल आंटी मम्मी पापा का काम ही नहीं था. कोर पेरेंट्स वर देयर बट ओनली बैचलर्स 100 people ओवर एंड आउट. Wedding and barat was limited friends, what they wanted to call. All elders that they wanted to involve. And the family only. No extended outsiders. I mean family. जो भी रिश्ते में आते हैं, जीजा जी से लेके भाभी से लेके उनके रिश्तेदार जो भी है. वेडिंग रिसेप्शन फुल सोशल, एवरीबडी जिसको बुलाने बुलाओ, 1000 के 1000 लोग को बुला लो जो भी. और एक डेस्टिनेशन फन डे रखा था उन्होंने जिसमें उनके सारे इंपॉर्टेंट लोगों को बुला लिया था. अब मैंने सबको अच्छा एक तो उन्होंने भी कहते कि सब जिनको बिल्कुल ही नहीं बुलाना है. अभी है ना लोग ये करते हैं बहुत बार कि बिल्डिंग में नेबर है, उसको शादी में नहीं कैसे बुलाओगे, बिल्डिंग में इतनी तैयारियां हो रही है तो बुलाना. तो एक वो लोग क्या करते हैं, जानबूझ के एक ऐसा इवेंट रखते हैं जो बैंक्वेट में हो, माता की चौकी हो, माता जी का पाठ हो, किसी का भजन हो, या एक प्री वेडिंग रिसेप्शन कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट हो गया है. So that they do it not in a 5-star, they do it in a banquet, a good banquet. I'm not saying for the cost cutting, I'm saying for crowd division. क्योंकि अगर मैं एक 5-star में एक मेन्यू जो रखता हूँ वो 4000, 5000, 6000, 10000 तक जाएगा, वही बैंक्वेट में 3-4 हज़ार में एक्सीलेंट सर्विस के साथ मुझे मिल जाएगा. Correct. A 5-star banquet. But I'm calling 1000 people. So now you see the money that you save, double the cost. So this hack works if you want to really have fun, have a lavish wedding and still save money. Basically divide your audience और एक ऑडियंस के लिए सेपरेट इवेंट्स रख दो. हाँ, सर बैचलर्स में बड़ों का काम ही नहीं है ना. Yeah, crazy. And you can also curate the experience. Yeah, it's जो fun. लोग परफॉर्म करने वाले हैं या फिर the entertainment that you are setting up, Yeah, they'll be more fun. They will enjoy with each other. we did that and there was one event where client said, Kunal, we don't want you for wedding because all elders are there. We don't want to feel the entertainment. Let them do what they want to do. तो उन्होंने एल्डर्स को बोला आपको जो सिंगर बुक करना है बुक करो, हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं. बैचलर संगीत हम कुणाल के साथ करेंगे. एंड उसमें भी 3 इवेंट है. तो इट वाज संगीत, पूल पार्टी फर्स्ट, देन संगीत एंड आफ्टर पार्टी. तो हमने 4 बजे से शुरू की पार्टी शाम को, वो नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे खत्म हुई. Wow. 3 events in a day. People were sloshed completely. It was a crazy party. Crazy. Yeah. Tell me some जो हम मैरिज में देखते हैं कि कपल प्री प्लान बहुत करते हैं, they go over budget sometimes, or Always. let's say usually over budget होता है. But what are some hidden cost जो every wedding में आपने ऑब्जर्व किया हो कि कपल प्लान नहीं करते पर ये कॉस्ट तो आते ही है. So now the current age couple, so whatever I'm talking now is with the prospect of last 2 years and the next 5 years. Correct. That's what you want. तो अब है ना सर, बहुत स्मार्ट हो गई पब्लिक. सबको पता है क्या क्या खर्चे लग सकते हैं. तो बिफोर वी थिंक ऑफ गिविंग द कॉस्टिंग, दे विल ओनली आस्क मी टेक राइडर का कितना लगेगा एक्स्ट्रा आपका. तो पहले ऐसा था कि भाई एग्जाम्पल है कि हम ये बहुत अच्छे से मग में विद अ लवली ब्रांडिंग वॉइस ऑफ इम्पैक्ट के मग में हम पी रहे हैं. यही कॉफी मैं एक पेपर ग्लास में भी पी सकता था कॉस्ट कटिंग के लिए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ. बट नो, वी आर रनिंग विद अ ब्रांड, वी आर सिटिंग ऑन अ टेबल विद अ ब्रांड. सेम इज when they know that they're hiring a brand anchor or brand DJ or a brand singer or XYZ whatever, उसके साथ attached plus आने वाला है. या तो सेकेंड आइडिया है हिडन कॉस्ट कट करने के लिए. आपने मुझे हिडन कॉस्ट पूछा है पर मैं आपको दूसरा आंसर दे रहा हूँ कि आजकल हिडन कॉस्ट का स्पेस नहीं बचा. उसका रीज़न है इतना ओपन मार्केट हो गया है, हमारी जनता है वो बहुत स्मार्ट हो गई है. तो अब पब्लिक क्या बोलती है, सर मैं आपसे कॉफ़ी मंगा रहा हूँ, मुझे कॉफ़ी ब्लैक कलर के मग में चाहिए जिस पे लिखा होना चाहिए वॉइस ऑफ इम्पैक्ट, मग का साइज़ होना चाहिए 200 ml जितना, और हैंडल बड़ा होना चाहिए जिसमें मेरी 4 उंगलियां जा सके, ऊपर थंब रहे. तो इतना प्रिसाइज ही हमको ऑर्डर मिलता है
there is no room of having a hidden cost. If we feel one mistake that people do in calculation is they don't count the food and the stay for the vendors in their accounts. वो मेहमानों को गिनते हैं, दोस्तों को गिनते हैं, घर वालों को गिनते हैं. पर अगर आप ध्यान से देखो, और डेस्टिनेशन वेडिंग है, अगेन आई एम हाईलाइटिंग डेस्टिनेशन वेडिंग, और इवन इन सिटी इफ यू डू अ वेडिंग, यू माइट और माइट नॉट आपको शायद याद नहीं रहेगा कि मेरे 10 फोटोग्राफर है या 5 फोटोग्राफर है, 3 मेकअप आर्टिस्ट हैं, 3 कोरियोग्राफर्स हैं, 10 डांसर्स हैं, शेडोज हैं. हाँ, बहुत बार तो लोग उनके फूड का केयर भी नहीं करते. जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि आप अपना फूड मंगा लेना, विल पे फॉर इट. तो people are smart. People are the next generation is smarter. And जो स्विगी, जोमेटो और ब्लिंकिट के ज़माने वाले हैं, उनको सब फिंगर टिप्स पे चाहिए. ठक 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 ठक. हो सकता है आगे जाके वेडिंग्स घर वालों के लिए वो ग्रैंड करेंगे, पर उनकी इच्छा होगी यार हमको सिंपल करना है, हिमालय पे जाके करना है, बैंकॉक जाके करना है, दुबई जाके करना है, 25 लोगों में करना है. सो नेक्स्ट जनरेशन शायद ऐसी वेडिंग्स चाहेगा. बट फिर भी एक वेडिंग ऐसी होगी जो द शो ऑफ वेडिंग होगी, द ग्रैंडियर वेडिंग होगी, जो करना है यार जिंदगी में एक बार तो शादी होती है, वैसी वाली. सो देयर आर ऑलवेज 2 सेट्स ऑफ पीपल वर्किंग ऑन द सेम वेडिंग, द कपल एंड द फैमिली. आई थिंक वो होगा नहीं, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, बिकॉज इवन आई हैव बीन टू सच वेडिंग्स कि जहाँ पे कपल का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता. दे इन्वाइट लिमिटेड पीपल, 100 पीपल मैक्स 150, नॉट मोर देन दैट. और बाकी के लोगों के लिए 500 लोगों का एक रिसेप्शन हो गया. एंड दैट इज़ फॉर द फैमिली मेम्बर्स, बिकॉज जो पापा होते हैं, मम्मियाँ होती है, दे वांट, क्योंकि इतने सारे वेडिंग्स अटेंड किए हैं, दे हैव सेव्ड मनी फॉर द लाइफ फॉर दिस इवेंट, और वो ग्रैंडियर दिखाना है. करेक्ट. तो वो होता है, रिसेप्शन भी होता है, बट नॉट एवरी इवेंट. सो आई विल शेयर यू वन फनी इंस्टेंस. Bridegroom, and that time we used to do event management. We stopped doing that since 2016. But there was a guest list, and bride was like the decision maker. And she's like, ये कौन है? तो बोला ये मेरे वो अंकल है, काटो इनको. ये कौन है? जिसको मैंने देखा ही नहीं 20 साल में, मैं उसको क्यों बुलाऊं मेरी शादी में? मैं तो 15 साल से तो इधर हूँ उधर हूँ. I don't want to call people who don't know me, who have not seen me. So bride cut at least 70 people in that list. Wow. So you can look at it as a cost cutting. You can look at it as a wise guest list. जिसकी शादी है, okay, ठीक है, I understand. Parents would know more people than what kids would know. ठीक है, हमारे I mean maybe our parents or maybe even a generation before us. उनके पेरेंट्स का रियल नेटवर्क बहुत ज़्यादा होगा. करेक्ट. क्योंकि वो सेल फोन के ज़माने या ये फेसबुक इंस्टा के ज़माने वाले नहीं, वो रियल कनेक्शंस वाले. तो हाई येलो कनेक्शंस. तो वो वाकई में दिल से बुलाना चाहते हैं वेडिंग में. पर कपल का ये कहना है कि वेडिंग मेरी है और मैंने जिसको देखा ही नहीं, जो मुझे जानता ही नहीं, मैं उसको क्यों बुलाऊं? True. So there is this difference of opinion, but then you come into that social belt. You're doing. मैंने एक वेडिंग में दूल्हा मेरे से मीटिंग में गुस्सा हो गया था, और बहुत फनी इंस्टेंस है. सो यू सिटिंग, ऑलरेडी शो लॉक हो गया था, प्लानर, फैमिली, दूल्हा, दुल्हन, दूल्हा भी बहुत यंग था. सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग हिम टू अंडरस्टैंड वॉट एवरीबडी. सो कोरियोग्राफर मेरा फ्रेंड निकला, प्लानर मेरा फ्रेंड निकला, जो वीडियोग्राफर था वो मेरा फ्रेंड निकला. तो सबको मैं 10-12 साल से जानता हूँ. सो वी ऑल वर ट्राइंग टू टेल हिम कि यार एंट्री है ना, यहाँ से ऐसे करना और फिर यहाँ से ऐसे वॉक है, इट लुक गुड, यू ब्लो अप द बलून, बिग डेस्टिनेशन वेडिंग. मेरे को नहीं चलना इतना सारा. तो कोरियोग्राफर बोल रहा है कैसे समझाऊँ इसको मैं. वीडियोग्राफर बोल रहा है शॉट कैसे आएगा यार. इवेंट वाला बोल रहा है कुछ तो करना पड़ेगा, दूल्हा है यार, इसका सुनना पड़ेगा. तो मैंने उनको पूछा आप शादी अपने लिए कर रहे हो कि गेस्ट के लिए कर रहे हो, मतलब मेहमानों के लिए, रिलेटिव्स के लिए, घर वालों के लिए? बोले मैं शादी अपने लिए कर रहा हूँ. मैंने सर अगर आप अपने लिए करो तो बिल्डिंग के टेरेस पे भी कर सकते हो, आप दुल्हन और पंडित. अगर आप अपने लिए कर, पर आपको चाहिए कि आपके लोग आपके साथ एंजॉयमेंट में हो. एंड जिनके साथ आप बैठे हो ये साल के 100 वेडिंग्स करते हैं. मैं मेरी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, इनकी बात कर रहा हूँ. वीडियोग्राफर्स, कोरियोग्राफर्स, एंटरटेनर्स, इवेंट प्लानर्स. सर वी हैव टू रिस्पेक्ट देयर आइडिया. यू डोंट वॉक 150 स्टेप्स, वॉक 100 स्टेप्स. यू आर सेइंग नहीं मैं डायरेक्टली पीछे से आ जाऊँगा, साइड से आ जाऊँगा. सर तो पहला इवेंट का माहौल कैसे क्रिएट होगा? लेट्स टेक अ लंच ब्रेक. उठ के चला गया दूल्हा. एंड आई वाज लाइक डिड आई स्पीक रियली ब्लंट? बट द ब्राइड फादर सेड नहीं कुणाल आपने सही बोला, जो हम समझा रहे थे उनको नहीं समझ में आ रहा था, शायद आपके बोलने से वो मान जाए. एक्चुअली दूल्हा मान गया एंड ही डिड व्हाट आई सेड. सो बहुत बार क्या होता है ना कि नहीं समझ में आता है.
यू आर ट्राइंग टू कन्विंस. नो, डोंट ट्राई टू कन्विंस. यू आर एन एक्सपर्ट. यू हैव टू टेल नहीं सर ऐसा करिए. उस दिन अगर आपको लगता है ना कि नहीं आज मैं थक गया हूँ, मैं नहीं चलूंगा, बिल्कुल मत करना. पर प्लानिंग में तो रहने दो. आपकी शादी है, मत चल के आना, अब साइड से आ जाना. आप एंट्री करो ही मत, डांसर्स रखो ही मत. सो दीज आर द थिंग्स दैट दे हैपन इन द रन टाइम. आई मीन गेस्ट लिस्ट की जैसे मैंने बात की, या कपल की मैं आपको अभी बात कर रहा हूँ. ये डिस्कशन का फ्लक्चुएशन आता ही है हमारे डिस्कशन में थ्रू द वेडिंग प्लानिंग और थ्रू द इवेंट एंटरटेनमेंट डिजाइनिंग और प्लानिंग वी डू. So I think we were on the question of how do you save money? You can save money by not having dancers. Because event planner is going to tell you कि dancers तो चाहिए. But bride बोलेगी नहीं, I want only family around me. Thumbs up. You save your money. 3 लाख 4 लाख बच गए आपके. Grand wedding में भी. True. पर आई गेस कितना भी पैसा बचा लो, इफ देयर इज चीटिंग हैपनिंग इन दिस इंडस्ट्री, दैट मेक्स यू लूज एवरीथिंग. तो आई जस्ट वांटेड टू कम ऑन दैट टॉपिक एज वेल कि ये इंडस्ट्री में चीटिंग होती है. You get some people who just take away your money and never appear. सर मेरे ख्याल से हर इंडस्ट्री में चीटिंग होती है. उसमें वेडिंग एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पूरा गेम ही इमोशन का है. एंड इट इज़ ईजी टू डू चीटिंग वेयर इमोशंस आर ईजिली प्लेड विथ. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इवेंट प्लानर्स और एंटरटेनर्स और आर्टिस्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यू मॉक पीपल हु आर इन द इंडस्ट्री जस्ट टू मिंट मनी. हमारे पास 2-3 ऐसे एनकाउंटर्स हुए थे केसेस के कि क्लाइंट ने हमें कॉल किया था. वी वर टू मीट देम एंड द मीटिंग वाज टू हैपन. देन दे टुक अ ब्रेक एंड देन मैंने पूछा मैम इज एवरीथिंग ओके, डिड वी नॉट रिप्लाई टू यू और वर वी रॉन्ग एनीवेयर. और नहीं कुणाल भाई हमारा एक 15-20 लाख रुपए का नुकसान हो गया वेडिंग से पहले. मतलब क्या हो गया? बोले कोई प्लानर थे एक पर्टिकुलर सिटी से, मैं नाम नहीं लूँगा, कि उन्होंने कहा कि पूरा पैकेज तो हमारा 60 लाख है पर हम आपको 30 लाख में देंगे. आपको अप फ्रंट अगर आप 15 लाख रुपए ट्रांसफ़र करते हैं, वील कम फॉर द साइट रेकी. तो वो इतने इनोसेंट थे, इतने नाइव थे शायद वेडिंग प्लानिंग में, या शायद ओवरऑल ही वो नाइव होंगे. तो उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया पैसा, उन्होंने रसीद भी भेजी, उन्होंने कुछ जो भी है अपना वाइब एक्सचेंज किया होगा. वो साइट विजिट पे आए ही नहीं और उसके बाद फ़ोन गुल, पर्सन गुल, पैसा गुल, वाह, नंबर गुल. कौन से सिटी में हुआ था ये? Client was from Bombay, wedding was to happen in Mahabaleshwar and the planner was from another city. हमारे एक और एक क्लाइंट के साथ जिनका हमने बहुत अच्छा शो किया, उन्होंने कहा कुणाल भाई मैं बहुत पजेसिव हूँ, आप रील पे और उस पर कॉन्टेंट क्या डालेंगे उसको लेके. मैंने कहा मैम हम हमारा काम डालेंगे जो हम डांस करते हैं या कपल का नाम, प्लानर्स का नाम. बोले प्लीज़ शो मी बिफोर यू पोस्ट. आई सेड या विल डू दैट, नो प्रॉब्लम. व्हाट हैपेंड? शी सेड वी वर ऑलमोस्ट अबाउट टू पे समबडी जिसका एक फेक इंस्टाग्राम पेज था. उसने सब अच्छा डाला था. उस आदमी की ना ऑफिस थी, ना स्टाफ था, ना कोई कंपनी थी, बस वो इंस्टाग्राम पे अपना इमेज क्रिएट कर रहा था. तो पीपल, आई फील देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन बीइंग स्क्रोलिंग एंड फाइंडिंग थिंग्स एंड बीइंग फूल्ड बाय समबडी. तो वो 10 लाख टोकन देने वाले थे 50 लाख के इवेंट में, दे भी देते, फिजिकली मिल भी लेता वो उनको गोवा में. पर उसका व्हाट हैपेंस इज दैट मैम साइट विजिट करते हैं ना डायरेक्ट. मैं तो कहता हूँ हर इंसान जिससे आप वेडिंग के लिए मिलने वाले हो, आप हम क्या करते हैं घर पे बुला लो, वीआईपी सर्विस ऑफिस में बुला लो. मैं तो कहता हूँ आप जाओ उनके ऑफिस, पता लगा रियल स्टाफ कितना है. वीडियोग्राफर है तो पता लगा उसके रियल एडिटर्स कितने हैं. मैकबुक पे काम कर रहा है कि विंडोज़ पे काम कर रहा है, बड़ी स्क्रीन पे काम कर रहा है, छोटी स्क्रीन पे काम कर रहा है, बड़ी बातें कर रहा है, छोटी बातें कर रहा है. आई माइट टॉक बिग. सो आई टेल माई क्लाइंट्स दैट इफ यू आर वॉचिंग माई फॉलोअर्स एंड हायरिंग मी, इट्स अ रॉन्ग वे टू जज समबडी. और एक कहानी है, अगर आप आज से 15 साल या 10 साल पहले अगर कभी आप हाईवे से गए हैं और हम ढाबे पे रुक के खाना चाहते हैं, तो एक इजी साइन ये होता था, अरे इस ढाबे पे 4 गाड़ियां हैं, यहाँ पे अच्छा लग रहा है, हम यहाँ पे रुक जाते हैं. बाय द टाइम यू पे द बिल आपको पता चलेगा चारों गाड़ियों मालिक की थी. वो चाहता था कि और 4 गाड़ियां रुक जाए. इंस्टाग्राम भी वही मशीन है. वही है, वही. इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स कौन है, पे मास्टर्स है, रिच. अब मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो इतने हाई प्रोफाइल हैं कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट ही नहीं होगा. So my followers are never going to be my real-time clients. Maybe 5% yes, I'll agree. But the rest all are here for fun. They are, हर विंडो शॉपिंग करने वाला आपका कस्टमर नहीं होगा. True. और मेरे जो हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स है, they are not concerned with my Instagram followers. They are concerned with whom I have worked in past. Can I deliver the class they belong to? Can I respect their choice of entertainment that they want me to do? So जो चीटिंग की आपने बात की, चीटिंग एट इमोशनल लेवल हैपन्स, फाइनेंशियल लेवल ऑल्सो हैपन्स. और एक बहुत ही डेंजरस चीटिंग मैंने जो अपने करियर में फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम सुना आज तक, आई एम अज्यूमिंग, कि प्लानर के पास गेस्ट लिस्ट थी,
और किसी रीज़न से मेन फैमिली का और प्लानर का सेटिंग नहीं बैठा तो विड्रॉ हो गया। शादी के 3 दिन पहले काम विड्रॉ हो गया, शादी तो हुई। तो प्लानर ने ऐसी हिमाकत की कि जो गट्स भी बोल सकते हैं उसको, डेंजरस भी बोल सकते हैं, कि उन्होंने गेस्ट को मैसेज करना स्टार्ट किया कि मुझे मेरे इवेंट मैनेजमेंट के पैसे नहीं मिले, तो जो पैसा या कवर आप कपल को देने वाले हो वो आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो, ये मेरा अकाउंट नंबर है। Wow. अब इसको आप They really did this. yeah. I mean, there have been months of police complaint and criminal cases filed, and things are happening. The point here is choose your person wisely. आप अपने खुशी के दिन के लिए ऐसे इंसान को चुनो जो वाकई में आपकी खुशी में खुश होना चाहता है। ऐसी प्लानर के लिए, एंटरटेनर के लिए साल में 100 बार 200 बार करते हैं, तो हर बार वो इमोशनली काम करना शायद पॉसिबल ना हो। या मैं पैशन से मेरे फील्ड में हूँ, बट मैं हर बार शायद वो ऑन फेस दिखा ना पाऊँ आपको कि मैं कितना पैशनेट हूँ अपने काम के लिए। पर आपका एज अ वेडिंग होस्ट या एज आपके घर में अगर वेडिंग है तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आप अगले को इंस्टाग्राम से और वेबसाइट से प्लीज़ मत इवैल्यूएट करना, उसकी ऑफिस जाना, उसकी स्ट्रेंथ पता करना, उसके रिव्यूज़ चेक करना, उसकी वेबसाइट पे उसके क्लाइंट्स के नाम पढ़ना, हो सके तो 3 रेफरेंसेस को कॉल भी कर लेना। बिकॉज यू आर पुटिंग योर मनी ऑफ लाइफ टाइम, इफ नॉट ऑफ लाइफ टाइम। मैं तो बोलता हूँ अंबानी को पैसे की ज़रूरत है क्या? इतना पैसा है तो भी वो बिजनेस बढ़ा रहे ना सर। True. मतलब दे आर मल्टीप्लाइंग। शाहरुख खान की वाइफ को पैसे का ज़रूरत है क्या? फिर भी उन्होंने किया ना, अपना इंटीरियर डिजाइनिंग का पूरा कोर्स खोल दिया। सो इट्स नॉट वेदर दे नीड टू अर्न मनी एक्स्ट्रा टू स्पेंड ऑन, इट्स मनी। फाइनली पैसे की वैल्यू है ना। आप कितने भी मेरे, आप कल 200 करोड़ के हो जाओगे और आपको 100 करोड़ की वेडिंग करनी है, पर वो जैसा आपने कमाया ना सर, तो सोच समझ के तो खर्च करेंगे सही इंसान पे। True. तो ये चीटिंग वाला स्पेस यू कैन कट देयर। True. Okay. So बहुत सारी grandeur weddings, ultra rich weddings की हमने बातें की, but why do you think कि आर्य समाज और court weddings are becoming more common among Gen Zs? वन अमेजिंग वेडिंग I did, because we're talking about this. संगीत से पहले मुहूर्त के हिसाब से उनको शादी करनी थी, तो कोर्ट का रजिस्टर लाके उन्होंने बकायदा सबके सामने रजिस्टर मैरिज की थी Wow. इन द वेडिंग वेन्यू। So there is a huge crowd और उसके साथ court wedding की। वो जो भी उसके फॉर्मेलिटीज करने वाले लॉयर्स या जो भी आते हैं, आई डोंट नो द टर्म, बट या दे हैड कम एंड उन्होंने साइन की थी, विटनेसेस की साइन ली, तो ये सब किया था। जेन जी स्मार्ट हो गया है पैसे को लेके। ओके, आप जेन जी को ये बोलेंगे कि डोंट बाय एन एप्पल फोन एंड बाय अनदर ब्रांड फोन, प्रोबेबली दे माइट नॉट बाय। उनके लिए शायद 1.5 लाख का एप्पल खरीदना मोर इम्पॉर्टेंट है देन बुकिंग 1 लाख का एंकर। एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक रिसेंटली क्वेरी आया हमारे पास जिसमें एक बहुत अच्छे दोस्त है हमारे, प्लानर है, उन्होंने कहा कि कुणाल भाई वेडिंग का बजट तो 2 CR है, लेकिन एंकर का बजट उन्होंने 20,000 ही रखा है। बोले हमको चाहिए ही नहीं। सो इट्स अ चॉइस दैट पीपल आर मेकिंग, दे आर श्योर अबाउट देयर चॉइसेस। एंड जो कोर्ट मैरिज आपने बोला, या जो आपने आर्य समाज, सी आर्य समाज इज, I'll say it's a different class probably, but simple, मुझे अगर इसकी वैल्यू फील हो रही है तो मैं करूँगा, नहीं हो रही है नहीं करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर यू टू ड्राइव अ मर्सिडीज इज अ पार्ट ऑफ योर प्राइड, पर वही कोई आपका दोस्त बोले अरे यार मारुति भी में तो 4 ही लोग बैठते हैं, तो मारुति चला ले। तो अब 2.5 लाख की मारुति या 5 लाख की मारुति, व्हाटएवर इज द प्राइस, 5-10 लाख की मारुति या 50 लाख की मर्सिडीज, वो आपका चॉइस है ना सर। पर आप मारुति में से ब्रांडेड शूज पहन के उतरोगे 50,000 के, तो लोग समझेंगे वो डुप्लीकेट है। पर आप मर्सिडीज से नॉर्मल स्लीपर्स पहन के भी उतरोगे तो लोग सोचेंगे क्रॉक्स का या कोई बड़े ब्रांड का चप्पल है। हाउ यू वांट टू प्लेस योर वेडिंग टू लुक लाइक, यू वांट टू। बहुत लोग ऐसे बोलते कुणाल भाई पैसा तो 1 करोड़ लगना चाहिए पर दिखना 2 करोड़ चाहिए। इट इज लाइक दैट कि आपने पूरा सच धज के आप तैयार हुए और नीचे स्लीपर्स पहना है, या यू आर इन योर कैजुअल्स बट पीपल जज यू बाय योर फुटवेयर्स। करेक्ट, exactly. So how you are looking at your wedding, so your point, what I see is in next few years people will have grand weddings, because वो एक segment है हमारे समाज का जो करता ही है, क्योंकि हमारे इंडियन वेल्थ को या इंडियन इकोनॉमिक्स को जो आगे लेके जा रहे हैं, जो पैसा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक सेगमेंट ऑफ पीपल हैं, उनका वो नेटवर्क ही है। वो शादी इज वन पार्ट ऑफ नेटवर्क। There are people who do matchmaking in their samaj, and that itself is a big event. अच्छा, उसमें एक जन से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि कुणाल
let me know the worth of the family, then I'll make you meet the another family. So you getting my point? It itself is a big deal. The wedding is a big deal for them. I'm not saying exchange of a barter of money. I'm saying to do a grand wedding is part of their one what do you call bucket list. Bucket list. कि मेरे 2 बच्चे हैं, bucket list, उनकी grand wedding करूंगा. हो सकता है अब भी जिनकी शादी हो रही है उनके बच्चों की शादी तो पक्का ही कोर्ट मैरिज होगी. जिनकी शादी अभी हुई है, क्योंकि उनके बच्चे शायद शादी करें ना करें, लिव इन में आ जाएं, या अब्रॉड गए तो अब्रॉड में ही शादी कर लें. True. So it might change, but still there will always be a segment of people. कितना भी Starbucks आ गया तो भी चाय तो हम पियेंगे. I mean people who really love tea. कितना भी बड़ी ब्रांड की कॉफ़ी आ जाए, अगर आप साउथ इंडियन कॉफ़ी पसंद करते हो तो आप एक बार ऐसी वाली कॉफ़ी तो पियोगे ना, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार. So there's always one segment of people who will keep running this business of wedding. And I think 2 लोग भी divided है. There are 2 groups. एक ग्रुप है जो 500,000 वाला बढ़ाता ही जा रहा है, ग्रांडियर वेडिंग. एंड देन देयर इज अनदर ग्रुप कि छोटे से 50 लोगों में हमें फंक्शन करना है, 70 लोगों में फंक्शन करना है, नॉट नेसेसरीली आर्य समाज और कोर्ट वेडिंग, But small. I want to have an intimate experience with my family. The There true marriage, the true culture. लोग मंदिर में ये intimate experiences create कर रहे हैं, like the ancient times. This is also trend going on. So I think the groups are divided fairly. You can call it trend, you can call it a hack of saving money, you can call it a hack of It is not hack of saving money. The reason I'm saying this because कि जो wealthy families है वो भी ये कर रहे हैं. The reason is कि भाई इतना ज़्यादा करके इतना hectic. See, most of the marriage what happens are getting hectic. कि वो pressure लेके कर रहे हैं. pressure लगेगा. It is no more fun for let's say most of the people. Yes. So they want like कि 50-100 लोग में हम कर ले. I think COVID it was not good for everyone. I shouldn't speak in that way. But the positive part is that बहुत सारे लोगों की wedding, including one of my family members, happened in 100 people. Yeah. और वो जो experience create हुआ था with those 100 close members, I mean that was the best wedding. So exactly as you said, वही experience वो मेरे one of the families के साथ हुआ था कि उन्होंने 100 people bachelors, amazing. 500 लोगों में bachelors में पता ही नहीं चल रहा कौन क्या कर रहा है. 200 people family wedding. They could feel the vibe of that moment that they wanted to create. So this could be the second way of next gen wedding that could happen. And again there always be a segment. हर बोलते ना हर बंदे के लिए एक फिट बना हुआ है. वैसा है. तो हर टाइप की वेडिंग के लिए एक टाइप का क्राउड बैठा ही है. वैसा है. Okay, so moving towards trends. What might everyone be asking you, but still people are like always कुछ जानना है. बहुत सारे लोग आपको पूछते भी होंगे, but they never get tired of asking this. 100%. Every year I'll believe new people would be coming. 100%. So we'll also have a small section on this trending things. You answer in the shortest or quickest manner as you want, right? Go ahead. So give me some live events or carnival trends for let's say 2026 and a couple of more years. Last 2 years or maybe more, 3 years, carnival trend has been giving gifts to your family members, having a gift stall, having different DIY activities. If you see, there were only basic DIY initially. Now it's been into lipstick making, perfume making. वो भी उसको भी 2-3 साल हो गया. Perfume making. Perfume making. So yeah, I mean, you can pick and choose the kind of perfume you want to make. Lipstick making. Then now there has been a trend of jewelry making. So there are beads and pearls kept, and you can pick and choose, make your bracelet. And again, if you understand, this is all to keep the crowd busy. Again, especially the female segment or the kids segment. रहा सवाल जो गेम स्टॉल्स होते हैं, तो कसिनो नाइट हुआ करती थी. अब कसिनो को डे में लाने के लिए इसको कार्निवल कर दिया. क्योंकि हमने कसिनो नाइट्स किए हुए हैं. तो कसिनो जब मैं सुनता हूँ तो मुझे एक इंडोर, डार्क, रेड, ब्लैक, गोल्डन, शिमरी, आई मीन ऐसा एक फील आता है. पर अगर मुझे कसिनो टेबल को दिन में लाना है तो मैं क्या करूँ, या शाम को लाना है संडे में तो मैं क्या करूँ, कार्निवल. So people have camouflage casino with carnival. So this is a trend. And one trend which has been on for a very long time is anchor gaming, which we used to do, which we still do. But that gradually people are now making it a 50-50. के 50% anchor gaming होगा, but बाकी 50% कोई एक आर्टिस्ट चाहिए. पहले एंकर 2-3 घंटे गेम खिलाता था, अब लोगों को नहीं चाहिए क्योंकि इतना सी एनीथिंग दैट इज व्हेन ओवरडोज, नो, पीपल डोंट वांट इट. Instagram is good because people are aware, but Instagram is not good because people are over aware.
आपको कितनी भी भूख लगी हो, आपके पेट के साइज से ऊपर तो मैं आपको खाना नहीं दे सकता हूँ ना। True. तो लोग इतना ओवर एडुकेट हो गए हैं, तो नया क्या है वाला जो क्वेश्चन है वो हर साल पूछेंगे, आने वाले 50 साल तक लोग पूछेंगे इस बार नया क्या है वेडिंग में। नया कुछ नहीं है, पिछले वेडिंग से क्या अलग कर सकते हो, कलर। सो देयर वाज वन एंटायर ईयर वेयर द होल डेकोर ऑफ कार्निवल हमेशा वो पर्पल हुआ करता था, पर्पल पेस्टल दिस दैट। सो पीपल हैव प्लेड विद दैट। Tell me one best wedding live event that you have attended in this 6,000 shows that you have done. Best life experience जो most unique लगा हो आपको. Wow, there are so many, but Pick one. I'm just trying to just go to my different locations that I've done. I think my favorite wedding is, and the favorite family is कंकरिया फैमिली है रायपुर में। मुझे उनका परिचय कराया विवेक ओबरॉय सर ने। Okay. So Vivek Oberoi sir was their brand ambassador for something 2007, and then I met them in 2000, and BlackBerry really helped me. I put on my status that I am at Raipur for a shoot of some family event, and Anand Oberoi sir ने वो देखा, बोला कुणाल go and meet this gentleman called Ashok ji, he's a very good guy, good to meet। तो तब नेटवर्किंग ऐसा कभी समझ में नहीं आता था कि नेटवर्किंग करना चाहिए, मिलना चाहिए, पर अच्छी फैमिली थी, मिला। और उनका पहला इवेंट मैं नहीं कर पाया फॉर सम रीजंस ऑफ, बट 2014 एंड अंटिल टुडे व्हाइल वी टॉक वी आर वन कॉल डिस्टेंस अवे, एंड ही सेड कुणाल भाई 5 दिन का इवेंट करना है। अब मेरे ज़िंदगी में पहली बार किसी ने बोला 5 दिन का इवेंट, मतलब 5 दिन इवेंट, 5 दिन आप करोगे, मतलब क्या है 5 दिन, प्री वेडिंग एंड वेडिंग, मतलब तो एक दिन अंताक्षरी किया, एक दिन सब खेलो सब जीतो किया, फिर एक दिन कुछ कवाली एंड समथिंग कुछ तो किया, देन संगीत किया, एंड देन वेडिंग एंड बारात एंड एवरीथिंग। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फैमिली दैट आई नो, ऑल आर गुड, बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फैमिली दैट आई हैव वर्कड मल्टीपल टाइम्स। सेकेंड थिंग, इट्स नॉट दैट एक इवेंट किया और रिश्ता खत्म हो गया। तो मेरे लिए इवेंट से ज़्यादा मुझे वो फैमिली इतनी याद है कि आज भी उनकी फैमिली में कुछ भी होता है, छोटे से छोटा भी इवेंट होता है या बड़े से बड़ा होता है, कुणाल भाई आपको आना है, दे डोंट आस्क मी डेट अवेलेबल है कि नहीं, कुणाल भाई डेट लिख लो, आना है। द बेस्ट पार्ट व्हाट आई लाइक्ड इन द प्रीवियस वेडिंग दैट हैपेंड वाज कि शादी नक्की हुई, लड़का लड़की नक्की हुए, एंड द फर्स्ट कॉल आफ्टर पंडित दे कॉल मी, कुणाल भाई 3 डेट लिख लो। तो मेरे लिए ये प्यार इतना बॉन्ड, तो फॉर मी दैट वन वेडिंग, अच्छा दिस इज द सेम वेडिंग ऑफ द क्राउड आई एम टॉकिंग जहाँ पे 5,000 गेस्ट लिस्ट थे। Oh, the biggest wedding that you have done. And this is the same wedding where Kunal Butch as a wedding barat anchor we started this। हमने ये 2016 या 17 में स्टार्ट किया था। आज वो एक बड़ा इवेंट हो गया, बारात ऑन व्हील्स है। लोग डीजे बारात में डीजेइंग करते हैं, बारात में एंकरिंग करते हैं। आप कहीं से भी रिसर्च करके हिस्ट्री कर लो, बारात में कभी कोई एंकरिंग हुआ ही नहीं करता था। मे बी कुछ होंगे जो करते होंगे, बट कहीं हमने यूट्यूब पे नहीं देखा, और होगा तो उसने डाला होगा, जो भी अच्छा कलाकार है वो अपना काम डालता है। तो 2016-17 में हमने काम किया, तब इतना हमें PR एंड यूट्यूब एंड गूगल के बारे में नहीं पता था। तो 2018 में हमने वो डाला, तो वो ट्रेंड फेमस हुआ, एंड आज इट्स अ बिग थिंग। सो पीपल हायर मी समटाइम्स ओनली फॉर बारात एंकरिंग, Wow. only for a gaming, because these are my special. See, there can be a 2 days 4 events same anchor, there can be 2 days 4 events 4 different anchors। There is a lapse to this, there is an advantage to this। अगर आपका क्राउड बहुत बड़ा है तो you can obviously, so जो ट्रेंड आप पूछ रहे हैं ना, अब एक ये ट्रेंड आने वाला है। अगर आप म्यूजिक इंडस्ट्री में देखें तो एक टाइम था जहाँ पे एक ही सिंगर सारे गाने गाता था, फीमेल एंड मेल, जैसे आशा जी, लता जी, कुमार शानू, ओके। फिर ट्रेंड आ गया कि एक गाना किसी और से गवाओ, बाकी सब इनसे ही गवाओ। फिर ट्रेंड आ गया एक आइटम नंबर किसी से गवाओ, एक गाना किसी से गवाओ, और 4 गाने तो इनसे ही गवाओ। फिर ट्रेंड आ गया कि 2 गाने इनसे गवाओ, 2 गाने इनसे गवाओ, 2 गाने। फिर ट्रेंड आया कि म्यूजिक ये 2 गानों का ये देगा, म्यूजिक 2 गानों का ये देगा, म्यूजिक 2। और एंड इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व अरिजीत, what is he doing? He is leaving Bollywood so that he can create his own empire, and he is the most high rated artist. He doesn't sing for wedding, it's his contract, he doesn't sing for wedding, only corporates and live gigs or the concerts. So the trend change is going to be a amalgamation of past that people have already experienced. So my favorite event, answering your question, is the Raipur family, Kankaria Parivar, Ashok ji, the best man that I have ever met in this life. Such a down-to-earth person, and every event he makes me feel equally special.
ऐसा नहीं कि हाँ चलो घर का है तो he takes me. No, he's never taken me for granted, and the whole family for that matter, whole bhabhi, their kids, and their barat anchoring that I did, there were 150 people dancing. Wow. Yeah, 150 people dancing, and all were wearing t-shirts of wearing like barati. You'll still see that video on YouTube if you want. I'll give you a clip of it. So everybody's wearing a t-shirt and dancing, and we had a whole flash mob barat happening. Flash mob barat, wow. आज के पहले किसी ने नहीं किया और मेरे बाद मैंने ही खुद ने नहीं किया तो कोई और क्या करेगा मुझे नहीं पता. So that's my favorite event. Spot this trend, guys. Crazy, it was crazy. Okay, so coming back to the same thing, मैं यही पूछना चाहता था आपके कि what's the most unique thing that we can do in a Bharat as of 2026? And you've already answered that question. Flash mob, yeah. Flash mob Bharat thing, right? Great. Okay, so मैं और भी थोड़ी चीज़ें आपको बताऊंगा. You tell me the best way to do it, right? Yes. Food trends. Food trends. Yeah. So people now, because it's more of a fusion food as a concept, so people are now more hooking up on fusion food or sushis or maybe the new trendy food stuff that people are coming. There have been weddings jahan pe I don't know what was that. For example, Starbucks का काउंटर लगा था वहाँ पे. हाँ. तो Yes. लोगों को इतनी पसंद है स्टारबक्स की कॉफी कि लोगों ने वेडिंग में लाके रख दिया उसको. So they have a kiosk of Starbucks. तो ये ट्रेंड चल रहा है बेसिकली कि you partner with a brand और वो Yes, specific it becomes a branded. हाँ. So caterers, they do their best. I mean, Great. they will have their own way of doing fusion food, but these are some spotting trends that I have noticed and people love it. सो बेसिकली आप एक स्पेशलिटी को बुलाओ जैसे कॉफ़ी है तो इसके लिए बोला चाय मस्का बन रखना है अपने इवेंट में तो चायोस आ जाता है. स्पेशलिटी. हाँ. So I've heard this in a podcast कि there is a famous chai maska bun trend going on and they hire people from Kolkata. Correct. So Kolkata is very famous for that. And exactly. the one who started this trend was Chayos. You know Chayos outlets? Chayos, yes. They are the one who started this with the trend. green branding. So I'll tell you, I had done this wedding for one of the very big pharma company of directors, Sudhir Walia sir, one of the directors, ex-directors in Sun Pharma, if you know the company. Sun Pharma, of course. His daughter's wedding, Shraddha Walia, Hyatt में था उनका, बॉम्बे में, ग्रैंड हायत में. तो वहाँ पे उन्होंने अपने संगीत, आई थिंक इट वाज संगीत इवेंट वेयर वी वर डूइंग, चाय एंड मस्का बन का काउंटर रखा था. एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2016 में भी. Wow. Nobody keeps it. It was a rare stunt that they did, but it was a super hit counter. मैं तब के ट्रेंड की बात कर रहा हूँ और वो अभी भी चल रहा है, आज भी है. लोग 24/7 टी काउंटर रखते हैं, तो चाय, टोस्ट, ब्रेड, स्प्रिंकलिंग sugar on that, and people love to have it. I've also seen, this carting, वो साइकिल लेके आते हैं and they serve you, late night snacking and all. जो भी live experiences है, I think they are gaining more and more with. We have done a crazy party, cocktail party था. संगीत going into a cocktail, only youngsters, Karjat, Forest Resort में था. 100 youngsters only. It was a twinning pajama Maggie party. Wow. We started at 11, we ended at 4. No way. Twinning. So every couple who were there, I mean, if they were hooked up or they were engaged or whatever, they had to be in twinning. In pajamas. And pajama party. So we were dancing in pajamas. We had an unplug by the pool going into the DJ. And Maggie, midnight Maggie. So it was Maggie, milkshakes, and obviously people who were having their drinks, they were having, but milkshake and Maggie. People are becoming crazy, man. Yeah. Honestly. It was fun. Okay, moving towards the stays. Give me the most unique stay experiences that a couple जो curate कर सकते हैं for the guests. In terms of hotel you're asking, or in terms of... In terms of experiences, because there are already good hotels and resorts there. Good, great question. I feel one great experience that some event companies have really made it very loud and clear that they're doing it. Give them a choice to pick their own hamper. So there's a hamper counter. Okay. We don't place the hamper. We give them the bags. We, in the sense, I'm talking about event planners. I am not an event planner. So the agency, they give them a bag. They pick and choose what they want. And they can refill the hamper. So एक hamper counter रहेगा ही वहाँ पे. तो आपको लगता है कि there is no limit to your entertainment. Or there is no limit to your food choices. They are giving you that free hand. So this is one experience that can be curated. Also, a lot of venue tie-ups with the the couple or the planner
कि all the checked in guests can have a 30% or a 20% discount on a spa. तो या तो आप कॉम्प्लीमेंट्री दे दो सर्विसेज या तो आप मेंशन कर दो कि आप 20% डिस्काउंट दे रहे हो, तो पीपल लव टू गो टू स्पा. सो ये सारे अदरवाइज सी आपकी जो गेस्ट लिस्ट है उसमें ऐसा कोई नहीं जो 5 स्टार नहीं किया होगा. करेक्ट They are not dying to go to a spa here in your hotel. But the moment you offer it as your offering, they will want to use it. True. Yeah. These are some wow factors. Yeah. Okay. Some trends for small and minimalist weddings. Let's say 50 people, 100 people. I think a good takeaway really works. And एक simple, common, evergreen चीज़ ये है कि हर इंसान अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है. Believe it or not, but ये fact है. True. कोई कुछ भी बोले. So the best takeaway could be a personalized gift. So there is a mug पे name writing, there is a handkerchief पे carving, there is a calligraphy writing, there is a what do you call photo frame picking up. Now there is an AI photo frame. So they click it and the whole thing becomes an AI like a caricature thing and they can take it. So anything where you are giving them their memories back, they would want to remember you for the next X time till they have the photo frame right next to them or a mug in front of them. Whatever I mean. Yeah. True. Okay, the next one is unique invitations. Unique invitations. I am gonna suggest this to one of my upcoming weddings is because the next gen is going to be very digital. They don't believe in physical card, going, giving, eating, mithais and all. नहीं होता. घर के 15, 20, 25 लोग आप भेजोगे. Couple का personalized AI या caricature invite. This is going to be the next trend. People will do it, I'm sure. Explain this. So I create my avatar. Okay. I create bridal avatar. And because of AI, you can always change whatever attire you want to. You can hire a good script writer who's going to, make a nice script out of that. And through the script, they reveal the save the date. They reveal the invite. Rather than watching a symbol, comes, elephant comes, camel comes, Animated couples भी आते हैं. that is done and dusted. And nobody watches a 3 minutes invite. So मैं तो सीधा invite के end पे जाके screenshot मार लेता हूँ. क्योंकि मैं स्टार्टिंग का कमल आया, फूल आया, हाथी आया, घोड़ा आया, 2 लड़कियां आई, वो मैं क्या करूंगा. तो लोगों को उसमें अब इंटरेस्ट नहीं रह गया क्योंकि ओवरडन हो गया. उससे अच्छा अगर एक कपल का कैरिकेचर आएगा, एक स्टोरी आएगी, एक स्क्रिप्ट बेस्ड इनवाइट होगा, लाइक अ वन लाइनर, लाइक अ जोक, एंड देन यू हिट दैट. एंड अवतार क्रिएटिंग अवतार इज दी चैट जीपीटी है, जेमिनी है. जेमिनी ने काफी नए लॉन्च किए हैं AI yes, many tools. So these tools can create an amazing next gen. और फिर जो भी आपको स्क्रिप्ट लिखा नहीं है, let's say you can also I guess do it before every event, like हल्दी से पहले एक भेज दिया to the guest. सर वो आपकी चॉइस है, पर मैं तो एनीवेज एक जनरल इनवाइट सेव द डेट की भी बात कर रहा हूँ. अगर किसी भी चीज में स्क्रिप्ट, एक सिंपल बताता हूँ, आपकी लाइफ की अगर कोई स्टोरी नहीं है, जैसे हमने बात की पॉडकास्ट के पहले, दैट हाउ डिड यू स्टार्ट. सो देयर इज अ स्टोरी टू you being here on this table, me being here on this table, right? If there is no story to anything that is happening around you, then it's a food without salt. True. And because I have been the longest time of my life, I have been as an entertainer, dancer, all the way from Nappy to where I am today. I feel if there is no wow factor, if there is no story, if there is no entertainment is a very loud term, but अगर मसाला नहीं है ना, तो मैं वो इनवाइट को सिर्फ एक इनवाइट देख के एंड पे जाके स्क्रीनशॉट मार के खत्म कर दूँ. आई एम नॉट हियर टू वॉच द ग्राफिक्स विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट टू द ग्राफिक एडिटर, बट अगर उसमें स्टोरी नहीं है तो मेरे लिए वो कुछ नहीं है. बिना नमक का खाना है. This is a huge point actually. Yeah. We all have our story, in all right? yes in any profession I guess storytelling is the must. That's the heart. Let's say कि कितना भी हम editing कर ले, even in the podcasting, कितना भी हम मसाला डाल दे, but content is still the king. I'll give you one superb idea which all your viewers can have it. So एक couple was saying कुछ अलग करना, मतलब कहा सर अलग करना है अगर डांस में, तो because it's a love marriage, I said you show a story from your. So this is a very common thing. कोई अलग out of the box idea नहीं है. The idea is connecting the dots. I said your childhood you show through dance, her childhood she'll show through dance, and you come to a point, and the moment you meet in that dance format, you will not do a couple dance on your sagai day because शादी 1 साल बाद है. मैंने कहा आप वहाँ लिखोगे this is part 1. The original story starts in the संगीत. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, and we end the सगाई का डांस on that hook. कि ये तो स्टोरी हमने आपको अभी तक बताई नहीं, अभी ये तो हमने हमारा बैकग्राउंड बताया.
पर रियली में हमारे मिलने के बाद क्या हुआ वो आपको पता चलेगा 1 साल बाद हमारे रियल संगीत में. सो नाउ द संगीत इज ऑलरेडी एंटिसिपेटेड टू बी अ हिट संगीत, बिकॉज हमने वहां पे हुक कर दिया है. और संगीत का स्टार्ट पॉइंट क्या होगा? कपल की एंट्री, उसका हाईलाइट चलेगा. कपल बोलता है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, जो भी फिर डांस में एंट्री है, कट टू, एंड देन द कपल एंटर्स. स्वागत नहीं करोगे हमारा, कट टू, एंड देन द संगीत स्टार्ट्स. सो मैंने एक इवेंट में ही 2 इवेंट का प्लानिंग कर दिया उनके लिए. So, I mean, this is how I look at an idea. What the difference that I feel between the lower middle class and how riches do the wedding is the amount of money that you are spending from your net worth. Obviously. लोगों को ये लगता है कि the riches are spending a lot, they're doing a grandeur wedding, but I still feel, जो अंबानी में हमने देखा, a lot of riches that we do are still spending around 1-2% of their wealth. Let's say कि ultra rich भी नहीं है, normal rich भी है, maximum 5% I'm talking about. Here the people are spending like 70%, 50%, more than research says 80%. मैं 50-70% बोल रहा हूँ. Research says 80% of their savings they throw up in just one wedding. But sir, they are not entrepreneurs, right? They are a working class. Yeah, Any true, entrepreneur wouldn't be even if a startup. So if you just see Zepto के starters 21 साल के लड़के हैं एंड स्टैनफोर्ड ड्रॉप आउट्स हैं. तो ऐसा कोई यंग एज एंटरप्रेन्योर है जो अचानक से गरीबी से उठ के या अपने स्ट्रगल डेज से उठ के आया, तो वो भी शायद वही खर्चा करेगा. That is true, but what I mean to say is कि अगर मेरे पास उतना नेटवर्थ ही नहीं है, why would I spend so much in my wedding? I mean, see, this is still the cycle. लोग शौक की बात है. हाँ, शौक की बात है. आप देखोगे, आपको मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ. Have you ever traveled by Bombay local train? No, you're not yet. Okay, you should travel, especially during festivals. और ये थॉट मुझे बहुत बार आता है, कई सालों से आ रहा है, अभी भी आता है, कि अगर एक एक्स क्लास ऑफ इंडियन कम्युनिटी है, एक्स क्लास है, जिनके पास उतना पैसा नहीं होता, तो भी वो कहीं से चंदा जमा करके गणपति बापा का बड़ा पंडाल बना के 10 दिन खर्चा कर देते हैं. तो इनको पैसे से मतलब ही नहीं, इनको सेलिब्रेशन से मतलब है. एंड मे बी इफ दे हैव से 10 लाख का सेविंग, वो 9 लाख खर्च कर देगा. आपने जो बोला 70%, 80%, whatever, 80-70, they will spend because they feel this is the only time I can blow up all that I have, and then again they get into re-saving for another big day or whatever, XYZ, I don't know. Rather, I have somebody who took a loan for the family wedding, and now he's repaying the loan. So loan पे भी लोग शादी करते हैं. So it is more like लोग क्या कहेंगे spending. नहीं करना है शादी सर. नया जनरेशन का जो कपल है, चाहे किसी भी क्लास का, वो बहुत स्मार्ट है. वो कहता है मैं अपने आप पे खर्चा करूंगा. True. मैं बाइक लूंगा, गाड़ी लूंगा, मैं हनीमून पे जाऊंगा, या मैं सोना खरीद लूंगा. आई मीन व्हाटएवर. सो दे हैव कट डाउन देयर गेस्ट लिस्ट. दे हैव कट डाउन देयर गेस्ट लिस्ट. बट स्टिल देयर इज अ सेगमेंट ऑफ पीपल हु विल स्टिल कीप अ वेडिंग रिसेप्शन. व्हाई? वी हैव टू कॉल पीपल. वी हैव टू कॉल. एंड जो दूसरे एक सेगमेंट की जो आप बात कर रहे हो सर, उनका उतना नेटवर्क ही नहीं, उतने लोग ही नहीं. उनके गिने चुने 25, 50, 30, 100, 200, 500 लोग हैं. पर जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो वेडिंग्स हम करते हैं, जहाँ पे वेडिंग एज एन इंडस्ट्री हैज ग्रोन अप, ओके, वो ऊपर, वो कल्चर को ऊपर लाने के लिए हायर एंड सुपर हायर एंड हाई टॉप नॉच पीपल ओनली ब्रॉट दैट अप. सो इफ यू गो बैक 20 years बैक, मारवाड़ी फैमिलीज यूज्ड टू हैव गीत एज अ, शादी के गीत अच्छे गाने का एक रिचुअल था. उसको बना दिया हमने संगीत. गुजराती में कल्चर था, गरबा करते थे कि शादी के 2 दिन 3 दिन. अच्छा, आपको पता है ये प्री वेडिंग इवेंट्स क्यों होते हैं? जस्ट आस्किंग. इफ यू गो बैक एंड बैक एंड बैक एंड बैक इन टाइम, पीपल यूज्ड टू फील कि घर में अगर कोई बिकॉज यू कांट हैव अ लैविश वेडिंग, यू यूज्ड टू कॉल पीपल होम एंड यूज्ड टू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग एंड क्रिएट अ हैप्पी डोपामिन इफेक्ट. ये जादू की जप्पी वाला डोपामिन, कि खुशी का माहौल है, तो 3 दिन पहले वो खुशी का माहौल बनाना स्टार्ट करते थे. जैसे खिचड़ी पकाने के लिए गैस पे रखनी पड़ती है, वैसा. तो 3 दिन वेडिंग को पकने देते थे. खुशी हो गई ना, अब शादी होती है. अच्छा, स्टिल पीपल वुडंट नो कि बारात क्यों होती है. आपको मैं पूछूंगा, लोग बारात क्यों निकालते हैं, तो वुड यू नो द आंसर? I probably don't know, but I can guess. Is it like to showcase the grandeur of the groom? No. Okay. Then I don't. कई सालों पहले जब गाड़ियाँ नहीं थी या रिचनेस नहीं थी, तो ओनली ईजियर मोड ऑफ कम्यूट वाज एनिमल्स, हॉर्स. ओके, तो एक पार्ट हो गया रिचुअल का कि भाई ठीक है, घोड़े पे दूल्हे को बिठाया. तो बारात निकालने का रीजन ये भी मैंने, आई हैव लर्नड इट थ्रू समबडी हु इज सीनियर इन द वेडिंग इंडस्ट्री. दे सेड
दैट जब गांव से आप तभी इनविटेशन कार्ड, डिजिटल इनवाइट, फिजिकल इनवाइट, ऐसा कुछ नो ड्रामा, आपने बोल दिया साहब जी आना है शादी में, तो ताकि कोई घर छूट ना जाए आपके गांव में, तो आप वो बारात निकालते थे कि भाई अगर किसी को नहीं इनवाइट मिला तो प्लीज जॉइन द बारात, कम टू द वेडिंग। ओरिजिनल रीजन ऑफ बारात वाज दिस। Wow. Original reason of sitting on the horse was they could not afford the car. Wow. And why Maharajas wear turban? It's a class differentiation. Why a king will sit on an elephant? It's a class differentiation. The soldiers sit on the horse. The sheikhs would sit on camel because they're in deserts, but they sit on a height. So if you see a high profile business tycoon's office, a big table, a big backdrop, or Ambani's photo, if you see a big chair, it's to showcase a class difference. Hierarchy. I mean, yeah, to put it in a very subtle way, but actually I would say in a very brutal way that it's a class difference. Correct. तो सर ये रीजंस थे शादी के। अब हर बंदा शादी एंटरटेनमेंट के लिए करता है। मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ 20% लोग मुहूर्त फॉलो करते होंगे, 80% लोग धमाल मचाता है, उनको मुहूर्त से कोई लेना देना नहीं। मुहूर्त की बात निकली है तो बहुत सारे लोग हमने देखा है कि अभी कमुर्ता में भी लगन करते हैं, इफ दैट इज कॉल्ड इन हिंदी। नॉन मुहूर्त, कमुर्ता कमुर्ता इज गुजराती टर्म, बट यू आर राइट के बिना मुहूर्त के या बिना स्केड्यूल के भी वो करते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द एनआरआईज और बहुत सारे लोग who want to really save money because there are so many dates booked, बहुत सारे लोग ऑफ सीजन वेडिंग, हाँ मुहूर्त के बिना ही वेडिंग कर देते क्योंकि हैं। स्पेसिफिकली एनआरआईज स्पेसिफिकली लुक फॉर दीज डेट्स कि जहाँ पे मुहूर्त नहीं है, क्यों तो कि सस्ते में हो जाएगा भाई। सर पर उसका एक आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ सच एनआरआईज यू वुड नो। आई नो कपल ऑफ एनआरआईज हुज वेडिंग वी डिड। इंडिया में आके वो वेडिंग खाली रिचुअल के लिए करते, उनका वेडिंग ऑलरेडी कोर्ट मैरिज हो चुका होता है। यस यस यस। सो फॉर देम द मेन purpose of being together is already sorted and settled, or they would do a ritual wedding with 20 30 40 people in a very high class setup. तो रिचुअल और मुहूर्त उन्होंने अपना कर लिया सर्व। अब जो कर रहे हैं धमाल मचा रहे हैं। डिफरेंशिएट दिस टर्म्स, वेडिंग और मैरिज में क्या डिफरेंस है? मेरे हिसाब से वेडिंग और मैरिज दोनों है एक ही सिक्के के पहलू। आई मीन आई वोंट कॉल इट डिफरेंट, इट्स सेम, बट आई फील engaging with your core family and following the rituals and doing it with the time bound, क्योंकि मैं एग्जाम्पल टाइम का महत्व है, जगह का महत्व है। अब मैं आपको बोलूँ एग्जाम्पल कि आप सर बेडरूम के बदले आप किचन में सोया करिए और बेडरूम में खाना पकाइए, आप क्या करोगे? ये नहीं करोगे, कोई नहीं करेगा, क्योंकि बेडरूम इज अ बेडरूम फॉर अ रीजन। इफ़ यू हर्ड पीपल सेइंग दैट बेडरूम पे सोने से पहले वहाँ पे नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए या लैपटॉप पे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ऑरा एनर्जी। तो हर चीज़ का अगर शास्त्रों में कुछ लिखा है तो कोई पर्पस होगा। मैं इतना डीप पर्पस जानता नहीं हूँ, पर अगर किसी ने कहा मुहूर्त से शादी करिए या मुहूर्त पे शादी करनी चाहिए तो कोई रीज़न होगा ना सर। आज इंडियन कल्चर में लोग गाड़ी भी लेते तो उसको तिलक करते हैं। अब गाड़ी तो टेक्निकली नॉन लिविंग थिंग है, तो क्यों चाहिए? तो लोग गाड़ी खरीदते वक्त बड़ा मुहूर्त फॉलो करते हैं, और वही बीवी के मांग में सिंदूर बनना है तो मुहूर्त की डब्बा गुल हो जाती है। तो दैट्स हाउ इट इज। And I've seen it n number of time. 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा वेडिंग डील है। और सफर कौन कर रहा है? क्लाइंट का पैसा, होस्ट का पैसा, एंड दो गेस्ट जिनको खाना नहीं मिला, क्योंकि ऐसा होता है कि भाई लेट चालू करेंगे, एंट्री के बाद करेंगे, या सिर्फ स्टार्टर्स चालू रखो, डिनर बाद में खोलेंगे। तो देयर आर दीज थिंग्स दैट आर इन इट्स डोमिनो इफेक्ट। आपने ये लेट किया, आपको लग रहा है इट्स लॉट ऑफ थिंग्स आर गेटिंग अफेक्टेड। या तो मेरे हिसाब से अलग नहीं है, वो एक ही है, और ये उसके साइड इफेक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा था। ग्रेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन और द नेक्स्ट सेगमेंट, रैपिड फायर। Oh my God. Okay. I want your answers in the shortest manner possible. I'll If try. it takes a word, don't take 3. Perfect. Maximum up to a sentence. Before you go to on rapid fire, I'll tell you. I know that is very constraining for an anchor. No. I have another reason to that. जैसे हलवाई अपनी मिठाई खुद नहीं खा सकता, डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर सकता, तो एंकर रैपिड फायर ले सकता है, पर एंकर रैपिड फायर देने में कितना होशियार होगा पता नहीं। तो आज You are on the other side of the table. Yeah, today. so fingers crossed. Go ahead. Okay. Weirdest guest request. बहुत ज्यादा बोलो, 20 मिनट एक्स्ट्रा बोलो। Wow, that's the weirdest guest. हाँ, request. बिकॉज Wow. वो चाहता कि मैं बोलता रहूं रेडियो की तरह। So I said I'm not a mimic, I'm an anchor. I'll not speak. और ये wedding पे था? Wedding, it's wedding. अरे बाप रे. Okay.
What's the number one budget mistake couples make in Indian weddings? They think that their budget is the right budget and they will not overshoot. That's a Mm. mistake. So the backup part, miscellaneous part, you say. Yeah, they always miss. Okay. Most luxurious wedding you have ever been to? Atlantis, Dubai. That was in my entire career. I have not seen any other wedding happening in Atlantis, an Indian family, Mm. and it was my pleasure, privilege, pride to be there. Atlantis is like the world's best hotel, Mm. Dubai, and I was host there for 3 days. So Kinki wedding, if you can name it. it was a Joshi family from Lagos. Okay. Their one family was from Dubai, Mm. and they have one family, or they come here sometimes in India at Worli, Seaface. They have their house there. Mm. So it was beautiful wedding. And again, very quickly, what was the most luxurious thing that you maybe experienced or seen there? There at the wedding. Yes, in the same wedding. So the experience of having a wedding at Atlantis. I mean to ask you or anybody in your circle, how many weddings have you heard happening in Atlantis? True. None. Atlantis. I mean, what are you talking about? Atlantis. Whoa. Okay. Worst wedding food you have ever been served, but you still had a smile on the face and you had to do I would love to answer this. We were not served the food. Oh. Because the host was a politician and उन्होंने इतने लोगों को बुलाया था, सुपर हिट वेडिंग, सुपर हिट संगीत, डाउन टू अर्थ क्लाइंट, और इतने लोग आ गए थे कि खाना खत्म हो गया था, खुद कपल को ही खाना नहीं मिला था. कपल को भी? हाँ, क्योंकि वो इतने दिल से प्यारे थे कि उन्होंने बहुत लोगों को बुला लिया था. And Sangeet went on for a little while because it was a big 5,000 people gathering. They were politicians, so the main family and the artist team, हमें उस वक्त खाना नहीं मिला. Then हमें रूम पे they arranged it for us. Okay, next one. What's the most embarrassing on moment mistake that you have made life? एक इवेंट में मेरी जिप खुली रह गई थी और मुझे आधे घंटे बाद पता चली मेरे पैंट की जिप खुली. बट वो तब होता है जब चेंजिंग रूम नहीं मिलता है, एंकर को फटाफट बुला लिया जाता है, एंड देन एंकर हैज टू चेंज इन द वॉशरूम. एंड उस दिन के बाद हमने हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एक लाइन लिख दी, एंकर विल नॉट चेंज इन द वॉशरूम, वी नीड अ फ्रेश एंड चेंज रूम. So yeah. Crazy. Okay. What's the one biggest wedding trend that you see in 2026? One biggest wedding trend. Whoa. Okay. I see. I see more of youngsters taking decisions. That's a trend for me, because there was time when elders used to take decision for booking things and all. Now only the Gen Z or the millennial kids who are getting married, they take the decisions. One of the reason could be because youngsters are not really marrying at a younger age. Average marriage age is 28 currently in India. 30, 32 also. Yeah, in tier 1 cities. Yes. So, but still, I think I will give the credit to the parenting here. कि उनके जो पेरेंट्स है वो इतना ट्रेंड के साथ चल रहे कि वो जानते हैं कि बच्चों को डिसाइड करने देना चाहिए, जो शायद हमारे और हमारे पहले वाले पेरेंट्स के साथ हमारा रिश्ता अलग था. कि हम जो पेरेंट्स ने बोल दिया डन, थम्स अप. पेरेंट्स ने बोला इंजीनियरिंग कर लो तो ओके, मैंने कर ली. राइट. बट दे टोल्ड मी विद दैट यू वांट टू कैरी योर पैशन, यू डू इट. नाउ द किड्स आर नॉट गोइंग टू लिसन टू द पेरेंट्स, क्योंकि इंजीनियरिंग करो बोलेंगे नहीं मुझे नहीं करना है. True. या बच्चा कितना भी होशियार हो, घर वाले बोलेंगे डॉक्टर बन, बोलेंगे नहीं मुझे नहीं करना है. I think it's very worth mentioning that कि हमारे जो parents हैं उनकी generation has been struggling the most. The reason I'm telling you is because वो ancient जो rigid mindset है वहाँ पे born and brought up हुए हैं, they suffered that और हमें freedom दे रहे हैं. Correct. So how difficult could anything be more than this? Exactly. So that's what I was hinting to, that the trend is going to be the parents have changed. The parents after our parents have changed. So now the trend is going to be youngsters True. will decide for them. Shout out to all the trending parents here. बच्चों को डिसाइड करने दीजिए. उसका रीज़न ये शादी उनकी है, एंड माना के बच्चे आपके हैं. एंड आई एम श्योर आफ्टर डूइंग 6,000 शोज, मैं जानता हूँ जहाँ पे बच्चे डिसाइड करते हैं वहाँ पे डिसीजंस क्विक होता है, नो टू मच ऑफ माइंड वॉन्डरिंग. एंड आई ऑलवेज से, एक गुजराती में कहावत है, राजा ने गमे रानी. तो अगर बच्चों को पसंद आ गया तो मैं तो मीटिंग में भी जाता हूँ, अगर मैं कहता हूँ आपको कोई और अगर आर्टिस्ट पसंद है प्लीज़ बुक हिम, बिकॉज इफ़ यू लाइक हिम और हर जस्ट डू इट. सो Okay. The last 3 questions. What's one thing that you would never say on a wedding stage, no matter what?
I never ever highlight a mistake of a tech or a family on the mic. Never did, will never do. Okay. One wedding moment that made you emotional. Not one, but since the time I've had my daughter in my life, वो जब से 1.5-2 साल की हो गई तब से मैं फिर ज़्यादा इवेंट्स पे और वापस जाने लगा. तो हर पापा बेटी वाला गाना या हर बेटी का विदाई वाला गाना मुझे इमोशनल कर देता. Wow. That's always there. I don't want to make you more emotional. I could dig deep into this topic as well, but I don't want to make you So more I emotional. mentioned this. So after the dance, you can say it's my signature statement now. I tell them that मेरी तो बेटी अभी 8 साल की है, तो मुझे अगर फील हो रहा है रोने जैसा, तो यहाँ कितनी बेटियां हैं, कितनी माएँ हैं, कितने फादर्स हैं जो बैठे हैं, जो अपनी बेटी को या तो याद कर रहे हैं, उनकी शादी के बारे में सोच रहे होंगे. तो just clap for all the daughters and the parents in the house. So If you don't mind me asking, आप इतनी weddings में जाते हो, Yeah. daily you are doing this विदाई and all this thing. Okay, how does it affect you? Because you have a daughter and at some point you know that. No, so it doesn't affect me because again मैंने उसमें भी एक ये मेरा सिग्नेचर सजेशन और जोक भी है, ये हमारी ऑडियंस के लिए भी हो सकता है. मैं कहता हूँ एक ज़माना था जब बेटियां यहाँ के ससुराल जाती थी, फिर बीच में एक ट्रेंड आ गया कि लोग घर जमाई बुलाने लगे. हाँ. अब ट्रेंड आने वाला है जो मैं स्टार्ट करूंगा कि जहाँ मेरी बेटी की शादी होगी उसके बाजू वाला फ्लैट मैं लूंगा, मैं घर ससुर बन जाऊंगा. So I wipe out my emotion or my tears with this thought के wherever my daughter, unless and until she says, Papa, please don't stick around me, I'm going to be sticking around her. Wow, crazy. Yeah. I guess वो trend है भी सही, क्योंकि I think lot of the kids and lot of the parents are also becoming mindful कि अगर शादी हो रही है, अगर घर में एक ही बच्चा है और 2 बच्चे हैं और both of or one of them are daughters, तो वो क्रॉस चेक हो ही जाता है कि how is the financial of the guy. That is the basic thing. Yeah. But there is all about we have Yeah. parents जिनका हम ध्यान रखेंगे, and that is the first condition that I'm getting married to you. Yeah. So the people are becoming very, very practical about that, and kudos to them. It's a core of our Indian culture also. Yeah, definitely. So it is no more separation now, क्योंकि उसके बाद भी if you are marrying in the same city or somewhere. मैं और एक चीज़ करता हूँ, बहुत बार ना, बहुत जब ज़्यादा इमोशनल कपल होता है और दुल्हन रो रही है, तो मैं जब वो रो रही होती है तब मैं पूछ लेता हूँ कि भाई इनके दोनों के घर के बीच का डिस्टेंस कितना है. तो ये तो बाजू की बिल्डिंग में रहती है, मेरा तो सिर्फ बाजू की बिल्डिंग में जा रही है, इतना रो रही है. तो मैं जाके माइक पे दूल्हे को बोलता हूँ, मैंने प्लीज़ परमिशन दे दो कि हफ्ते में 3 बार ये अपने मम्मी के घर जा सकती है अपने परमिशन से. 10 बार भी जा सकती है, पर 3 बार तो आप दे ही दो, और वो 3 दिन आपको दोस्तों के यहाँ जाने मिलेगा. हाउ इज अ डील? सो द ग्रूम सेज नहीं 6 दिन जा हफ्ते में. सो वी मेक आई मेक द मोमेंट लाइट एंड इमोशन है, पर as a show handler, as a show stopper, as a speaker, my job is not to get stuck where we are. It's about moving. It's next. Okay, come on, next. So when people are in that emotion, I'm already on the next spot. That's all. Okay, so the last question to end our rapid fire. How would you describe Indian weddings in one word? Larger than life. The big fat. Live life king size. Okay, Dr. Kunal Booch, what a fantastic episode. Super, I loved it But too. Before we close down, हमारा एक और आखिरी question. Please. So this is more about, as you said, the larger picture, or since the wedding has started. क्या आपको लगता है कि ancient Indians ने, Indians mythology बोल लो, history बोल लो, whatever people believes, we have created such an experience जहाँ पे लोग sad भी होते हैं, emotional भी होते हैं, enjoy भी करते हैं, parties भी होती है, विदाई भी होती है. Such emotionally well designed pacing happening for over 2,000-3,000 years, 2 or 3,000 years, and still going on. It survived COVID, technology survive kiya, generations, British rules and what not, it has survived. It is still going on. What do you think about that? Are the Indians master of curating experiences? I strongly believe one thing, that अगर हम ध्यान से इंडिया के मैप को देखें तो हर बॉर्डर के बाद एक नया लैंग्वेज, एक नया सेलिब्रेशन. यानी हमारे पुरखों से हमने एक चीज़ सीखी है कि हमारा स्टेटस, वैल्यू, लेवल जो भी हो, हमें सेलिब्रेट करना आता है. हमारे इतने फेस्टिवल्स हैं, हमारे इतने त्यौहार हैं, हमारे इतने रिश्तेदार हैं, हम शादी को भी त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं
और उसका रीज़न ये है, एंड दैट्स वाई मे बी आफ्टर बिफोर ब्रिटिशर्स केम टू अस वी वर रिच, देन नालंदा को जला दिया गया वो मुगलों ने वगैरह 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 वगैरह, एंड अगेन वी आर ब्रिंगिंग आर हेरिटेज ऑफ नॉलेज बैक अप देयर, हेरिटेज ऑफ यूजिंग दैट नॉलेज टू मेक द इकोनॉमी अप. सो इन सब का कहीं ना कहीं बैकअप जो है वो है इमोशनल हैप्पीनेस. तो शादी सिर्फ पैसा खर्च करने का जगह अड्डा रीज़न नहीं है, हैप्पीनेस का रीज़न है, सेलिब्रेशन का रीज़न है. एंड विद दैट सेलिब्रेशन मैं बहुत बार लोगों को ये भी कहता हूँ कि वेडिंग इज जस्ट नॉट अ वेडिंग, इट्स अ रीयूनियन ऑफ फैमिली मेम्बर्स. किसी के शिकवे गिले वो ठीक हो जाएंगे, किसी को बहुत सालों से मिलने का मौका नहीं मिला वो मिलते हैं, कोई दोस्त अब्रॉड से सिर्फ अपने दोस्त की वेडिंग के लिए आया, इससे दोस्ती की इंटीग्रिटी बढ़ती है. तो हमारी ह्यूमैनिटी को ऐसे फेस्टिवल्स, ऐसे रीजंस और वेडिंग्स टू सेलिब्रेट चाहिए, एंड दैट्स व्हाई इंडिया will always survive this for another 1,000 years and maybe 1,000 years and maybe 1,000 years. Very beautifully said, Kunal. Yeah. Thank you so much. Superb episode. I think we covered trends, psychology, audience perception, what not we have covered. Starting from finance, economics and everything. अगर कुछ और रह गया हो दोस्तों तो please mention in the comments because we can bring Kunal for I don't know how many times. He has so much to speak about. मेरा plans ही रह गए and we started on different topics but it was so fun. Thank you so much for traveling all the way from Mumbai to here and thank you so much for giving us this experience and giving us the privilege to host you. Pleasure. You're a happy soul. So anybody to whom you will interview will always have a fantastic podcast. It's not only me. It's your vibe that is making the podcast beautiful. So thank you so much. Thank you so much. Very grateful. Thank you so much. Thank you. Thank you. And thanks to your whole team. Thanks to your mom for being a moral support. So this is a candid part, but yeah, I appreciate that. Mummy पण आता तो मजा आएगी. Thank you so much, Kunal. Mummy, mama, mommy. Yeah, sorry. Yeah. All family. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, bro. Thank you so much. And yeah, how was your experience with Kunal Buch on the show, and then on the show, and then on the podcast? What is that one thing about Kunal Buch that you like? If you can just put it as a review on the camera, we'll take that from you. Raw and real Kunal Buch. There is no filter. There is no brainer. He knows your veins. That's the one thing I would say because the experience that you create. See, मैं इस podcast पे आता ही नहीं if I wouldn't have loved you on a couple of marriages. So for the people who doesn't know, I spotted Kunal on a wedding on a friend of mine. Then I suggested him for another friend's wedding. So that made me double sure that was not just the one-time experience. Super. I loved that, and even the second wedding, I loved you more because I already known your vibe. And I was evaluating you on the second wedding. Okay. So that was fantastic. And even the guests told me the same thing, which the audience doesn't know. But that brought us to this beautiful podcast on wedding. And we hope that we can invite Kunal again. And I hope if I am getting married soon in the future, definitely you are hosting that. Perfect. Giving you one more trend. Mock weddings की भी idea है, तो हम आपका स्वयंवर भी कर सकते हैं. Thank you so much, Kunal. We'll have you one more time on the show, definitely. Thank you.